आपके कार्मिक चार्ट के हिसाब से, आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से या कुंडली के हिसाब से, अगर आपके नसीब में बच्चों का सुख नहीं है और अगर आप फिर भी बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो वो बच्चा आपको सुख से ज्यादा तकलीफ और दुख देके जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो सीए करना था, मुझे तो एमबीए करना था, लेकिन अब ये ट्रॉमा हुआ है कि मेरी शादी हो गई है, मेरा एक बच्चा है और अब 2 साल की उम्र में पता चला कि मेरे बच्चे को डायबिटीज है। बहुत अंडर प्रिविलेज बेगर्स जिसको हम बोलते हैं, जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे होती है। अगर पानी का टैंकर है तो पानी का टैंकर पीछे से खोल के वो सिग्नल पे उसी पे नहाते हैं और नाचते हैं। हम लोग अपने फर्स्ट क्लास 5 स्टार बाथरूम्स में भी सोचते रहते हैं व्हेन वी आर टेकिंग अ शावर, अब क्या ये क्या वो क्या, ऐसे क्यों हो गया, बैठ के रोते हैं हम। आप that if there is a very good looking woman who is speaking something important, people don't want to pay attention to what she's speaking. People just assume that, oh, she's successful because she's good looking, she's successful because she's thin. Death is never painful for the people who have died. Death is painful for the people who have survived. Welcome to the Debina Banerjee Show. She doesn't just heal minds, she unblocks energies, breaks patterns, and rewrites inner stories. From trauma to transformation, Kavyal Siddhani is that rare blend of science, soul, and intuition. Today, we dive deep into the power of healing beyond therapy, with the woman who helps you rise, one layer at a time. Welcome to the Debina Banerjee Show, Kavyal. Okay, जिसके भी जो भी equipments हैं, whoever is sitting, just imagine that the end of your spinal cord is growing roots going deep into the center of the earth. अगर आपका speakers है, mics है, monitors है, screens है, imagine that उसके भी roots उग रहे हैं going deep into the center of the earth. Connect it to the earth energy, it'll go without flaws, without problems. And now just tilt your head to connect some light somewhere and also connect yourself to the sun energy, so that we just become a flute of the earth energy and the space energy playing through us. And now just imagine that we are all covered in a purple ball of light. This room is covered in a purple ball of light of protection. And just think of your own gurus, your own teachers. Thank them for playing the role that they have played, so that we have a seat on this table, so that we are in a position to speak. And just open your heart up and allow this love to flow out, and send out a prayer that this podcast reaches as many people as it can reach. It benefits whoever needs to benefit from it. And now just give yourself a round of applause for how far you've come to raise the vibration of the room. We are good to go. What a lovely start. What a lovely start. There couldn't have been a better start to start today's day, today's podcast. थोड़े दिन पहले ही कुछ चीज़ें इंटरनेट आपको दिखा देता है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको अवेयर कर देता है. तो मैं खुद सोच रही थी व्हाट इज़ दैट आई शुड डू फॉर माई सेल्फ. कुछ NLP करूँ कि इनर चाइल्ड हीलिंग करूँ. इट्स अ वेरी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन फॉर अ लेमैन. मुझे ऐसा लगता है कि I want to do something, but I do not know what I want to do. So I will start from there, and then we will go back and forth as in how the conversation goes. So मुझे लगता है कि it's a divine timing कि आज आप मेरे सामने हैं, तो मुझे गूगल नहीं, मुझे सारे जवाब एकदम आपसे मिल जाएगा. एंड आई एम श्योर कि मेरे जैसे बहुत सैकड़ों लोग होंगे जो गूगल से आंसर ढूंढते हैं, हु इज़ ऑन द पाथ ऑफ दे वांट टू get healed, they want to do something or maybe just connect with your inner self, but they don't know where to start. So let's just start from there.
अगर किसी को कुछ बस शुरुआत करनी है, आई मीन इफ़ यू नो दैट यू नो देयर इज़ अ ट्रॉमा, तो आप शायद साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, एनएलपी एक्सपर्ट के पास जाते हो, किसके पास जाओ? हर एक इंसान हमेशा किसी थेरेपिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं पहुंचता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हीलिंग जर्नी कभी होगी ही नहीं। ओके अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हैं तो आप अपने गुरु के पास जाएं। अगर आप फिजिकल इंसान हैं तो आप जिम में जाएं या डांस स्टूडियो में जाएं। अगर आप इंटेलेक्चुअल इंसान हैं तो आप पॉडकास्ट देखें। वॉट एवर यू आर डूइंग ऑलरेडी इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन योर हीलिंग। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत खूबसूरत है, सोल वर्ल्ड की बात है कि हम सब पहले से डिसाइड करके आते हैं कि इस जन्म में हमें क्या सीखना है, कि इस जन्म में ना मुझे औरतों और बच्चों के वेलफेयर को ज़रा सा और ठीक करना है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट कॉज, ओके आई विल वॉलंटियर फॉर दैट। और ये इन्फॉर्मेशन सोल के पास रह जाता है। जब हम पैदा होते हैं तो किसी का राजा बेटा रानी बेटी बन के पैम्पर्ड होके पैदा होते हैं, स्पेशली इन द 2025 एरा। इट इज़ वेरी लाइकली कि हमारे जन्म के 15, 16, 20, 25 साल निकल जाएं एंड वी हैव फॉरगॉटन, अरे ये सोल पर्पस तो ये था कि बच्चों के लिए और औरतों के लिए कुछ करना था, भूल गए। तो अब आपका एक लाइफ में एक ट्रॉमा आएगा, और ये जो ट्रॉमा आएगा ना, ये आपको हिला के रख देगा, तोड़ के रख देगा। आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो सीए करना था, मुझे तो एमबीए करना था, लेकिन अब ये ट्रॉमा हुआ है कि मेरी शादी हो गई है, मेरा एक बच्चा है, और अब 2 साल की उम्र में पता चला कि मेरे बच्चे को डायबिटीज़ है। इट कैन शेक द वुमन कम्प्लीटली, कैन शेक द मदर, इट कैन शेक द फैमिली। तब वो बोलेगी सीए ये सब साइड पे छोड़ो, मुझे अपने बच्चे को हील करना है। और अब वो रिसर्च में लग जाएगी कि कैसे, मैं क्या करूं, कौन सा खाना दूं, कौन सी दवाइयाँ, कहाँ का रिसर्च। और ये जो वो मेहनत करती है ना, इससे वो ना सिर्फ अपने बच्चे को हील करती है, लेकिन वो डायबिटीज़ को बड़े बड़े पैमाने पे शी कैन हेल्प हील द वर्ल्ड। दैट ट्रॉमा दैट हर सन हैड डायबिटीज़ becomes your soul's forgotten purpose का awakening. Your trauma is an activation button for your soul's forgotten purpose. तो सिर्फ ऐसे सैडनेस में और अपसेट में मत बैठो कि ट्रॉमा क्यों हो गया यार मेरी लाइफ में, ट्रॉमा के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी, आई हैड प्लान द मोस्ट परफेक्ट लाइफ। आप तब अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाएंगे जब आपको आपका पर्पस मिलेगा और जब आप उसे पूरा करेंगे। पता है, मेरे पास हर तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, मतलब सुबह उठेंगे और गुची अरमानी के कारपेट पे अपने शनेल के चप्पल पहन के दुनिया में बाहर पैर रखते हैं। तो मुझे कहते भी हैं कि काव्या सब कुछ है मेरे पास, बस खुशी नहीं महसूस होती, किसी चीज़ में हैप्पीनेस नहीं एक्सपीरियंस होती। वो इसलिए है कि ये जो खुशी और हैप्पीनेस है ना, ये लाइफ के बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से आती है। जब कोई तकलीफ आई, जब हमने उसे सॉल्व किया, उसमें से जो खुशी महसूस होती है, सिर्फ वही खुशी आपके साथ रहती है। आपने एक बैग खरीद ली, 1 डे ऑफ जॉय। आपको वो ड्रीम जॉब मिल गया, 5 days ऑफ जॉय। आपकी शादी हो गई, 6 months ऑफ जॉय। आफ्टर दैट एवरीथिंग बिकम्स मोनोटोनस। लेकिन अगर आपका ये प्रॉब्लम था कि आपके पेरेंट्स गांव में थे और आपको उन्हें कुछ भी करके शहर लाना था, यू वांटेड टू गिव देम अ बेटर लाइफ, लेकिन गांव से शहर लाना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, हज़ारों ऑडिशन में जाना पड़ेगा, 600 बार रिजेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसको कॉन्कर करते हैं और एक घर बनाते हैं यहाँ पे, आपके पेरेंट्स जब यहाँ पे आते हैं ना, आपको लगता है कि बस अब ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं कमाया ना तो चलेगा, आई एम हैप्पी। वो हैप्पीनेस आपसे कोई नहीं छीन सकता। योर हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग लाइफ्स प्रॉब्लम्स। How beautiful. But you do a lot of things, you know, like hypnotherapy and past life regression
एंड सो मेनी अदर थिंग्स. आई मीन हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता, बट हाउ डू यू नो हाउ टू एड्रेस अ सर्टन प्रॉब्लम? मतलब क्लाइंट क्या आपके पास आते ही ये बोल के कि मुझे ये कराना है, या यू सी एंड देन यू एड्रेस इट विथ वन ऑफ इट? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ द क्लाइंट. कुछ लोग होते हैं अगर कोई मेरे जैसा है जो बहुत कंट्रोल में रहता है, उन पे हिप्नोथेरेपी नहीं चलेगी. ओके. नहीं चलेगी क्योंकि वो ऑलमोस्ट एज अ चैलेंज देखते हैं कि भैया मैं भी देखता हूँ कि ये क्या ही कर लेगी. आई विल नॉट गिव अप माई कंट्रोल. We call them emotional suggestibles or intellectual suggestibles. This is a term in hypnotherapy. If somebody is extra intelligent, extra logical, मतलब दुनिया के सबसे कठिन से कठिन सवाल का उनके पास जवाब है, they don't want hypnotherapy. It'll be failing. लेकिन अगर कोई इंसान जो आपके सामने है जो भावुक है, इमोशनल है, दे आर रेडी टू सरेंडर, दे आर रेडी टू से भाई प्लीज़ कुछ भी करो आप, यू नो जस्ट हील मी, हिप्नोथेरेपी विल वर्क ब्यूटिफुली ऑन देम, ब्यूटिफुली. सो देर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी. तो जो इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल है उनके साथ वो कॉग्निटिव थेरेपी ज़्यादा काम करती है कि अच्छा आप मुझे बताइए क्या तकलीफ हो रही है. मुझे 1 2 3 4 तकलीफें हो रही है. अच्छा तो इसके 5 6 7 8 सोल्यूशंस भी हो सकते हैं. दे वांट कॉन्वर्जेशंस. लेकिन आप कोई भी थेरेपी चूज़ करें, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हर्ड, दे वॉन्ट टू बी सीन. कभी कभी कुछ लोग थेरेपिस्ट के पास इसीलिए आते हैं कि बिना किसी बायस के या बिना किसी जजमेंट के आप मेरी बात सुनिए और आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ. That's all they want to know. And when you actually hear them out and say, yes, okay, tell me more, that's interesting, I hear you, I understand. वो जो रो लेते हैं ना पूरी बात बता के, वो रूम से बाहर चले जाते हैं फीलिंग 40% हील्ड. 40%. ये आपको समझ में आना चाहिए ये सुन के कि कितनी एक भूख है लोगों में कि कोई मुझे देखे, कोई सुने, कोई समझे. आधी हीलिंग तो उसी में हो गई. फिर आप कोई भी थेरेपी लगा दो. देर इज़ जेस्टॉल, देर इज़ न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, थीटा, एक्सेस बार्स, you name it and it's there. Everything works. If you believe, everything works. If you don't believe, nothing works. और थेरेपी एक प्रोसेस है जहाँ पे हम आपको कुछ टूल्स देते हैं कि हम समझते हैं आपकी बात, हम समझते हैं आपका दुख, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, शायद यहाँ पे आपकी थोड़ी सी गलती थी, शायद यहाँ पे किसी की गलती नहीं थी. हमारा काम है उन्हें विक्टिम मोड से बाहर निकालना, उनका पर्सपेक्टिव चेंज करना. तो मैं ये एक स्टैंडर्ड लाइन है, अगर कोई भी काव्यल सदानी को जानता है तो वो बोलेंगे कि काव्यल विल टेल यू, दिस डिड नॉट हैपन टू यू, दिस हैपेंड फॉर यू. हाउ डिड योर लाइफ चेंज बिकॉज ऑफ दिस? ये गरीबी आई, ये आपके लिए आई है. क्या चेंज हुआ? अच्छा, आई लर्न टू बिकम अ सेल्फ मेड पर्सन. वो मिस कैरेज हुआ, वो आपके लिए हुआ. व्हाट डिड इट टीच यू? आई लर्न टू वैल्यू मदरहुड. ये जो ब्रेकअप हुआ वो आपके लिए हुआ. क्या सीखा उसमें से? ओ डोंट टेक माई रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड. जब आप वो टूल्स लेके जाते हैं ना किसी ट्रॉमा से, आपकी लाइफ वहाँ से चेंज होती है. एक थेरेपिस्ट का काम है आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना और फिर आपको साथ देना कि चलो अब तुम्हारी लाइफ की जर्नी में आगे क्या किया, क्या करोगे, गलती हो गई कोई बात नहीं, चलो माफ़ करते हैं अपने आप को, अब दोबारा नया क्या कर सकते हैं. अगर लोगों को ये लगता है कि वो थेरेपिस्ट के पास आएंगे 10 बार आएंगे और थेरेपिस्ट कुछ ऐसा मैजिक करेगा और उनकी लाइफ तो नॉर्मल ही चल सकती है, नहीं नहीं नहीं, यू आर कमिंग विद अ वेरी रॉन्ग पर्सपेक्टिव. काम तो आपको ही करना है. इस उसी सवाल से मुझे 2 और सवाल पूछने हैं कि अ ट्रॉमा टीचेस यू समथिंग एंड मेक्स यू a different person, or else does a trauma can also give you any kind of physical ailment? मतलब मैंने ऐसा सुना है कहीं कि certain बीमारीज are trapped traumas and all, even like बिल्कुल some cancers and things like that कि it's your trapped traumas. So मतलब
ट्रॉमा को ट्रैप करके बीमार भी होते हैं और उसको फिर मतलब ट्रॉमा को प्रोसेस करके आप एक अलग इंसान भी बनते हैं. सो आई जस्ट वांट टू नो द कनेक्शन. Every trauma is a gift. Okay? और ये there are 22 lessons of the soul. 22 lessons that the soul has to learn. तो हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि ये जन्म में ये वाला लेसन सीखेंगे, और कभी कभी वो एक लेसन सीखने के लिए हमें 30 जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि वी आर नॉट लर्निंग सो ईजीली. ब्लेम करना आसान है, विक्टिम बनना आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल है. तो अगर हमने वन ऑफ द मेजर लेसन्स इज दैट स्पीक योर ट्रूथ इवन इफ योर वॉइस शेक्स. डर लगता है ना, फिर भी अपनी सच्चाई बोलो. ये सिर्फ एक लाइन सीखने के लिए एक पूरा जन्म चाहिए हमें, लेकिन हम कॉन्ट्रास्ट में सीखते हैं. किसको बोले? दुनिया को, अपने आप को. अपने आप को. यू हैव टू बी एबल टू एक्सप्रेस हु यू आर, एंड दैट एक्सप्रेशन इज नॉट ऑलवेज वर्बल. अगर आप पेंटर हैं तो आप पेंटिंग करके एक्सप्रेस कर सकते हैं. आप डांसर हैं, आप डांसिंग करके एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन हम हमेशा कॉन्ट्रास्ट में सीखते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये सीखना है कि अपनी सच्चाई को एक्सप्रेस करो, डर लगता है तो भी हमारे जीवन में जो किरदार आएंगे ना, वो ऐसे आएंगे जो आपकी सच्चाई को सप्रेस करेंगे, जो आपको एक्सप्रेस नहीं करने देंगे. आपको डांसर बनना है, लेकिन यू विल हैव पेरेंट्स हु आर साइंटिस्ट एंड हु आर डॉक्टर्स एंड दे विल टेल यू कि ये क्या टाइम पास लगा के रखा है. बी सीरियस, डू समथिंग एल्स. आपको टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे यू आर गुड फॉर नथिंग, जस्ट सिट डाउन, यू आर फेलिंग एवरी एग्जाम, व्हाट यू वांट टू टेक पार्ट इन एन एलिक्यूशन. आपकी शादी हो जाएगी, यू मे गेट मैरिड टू समबडी हु विल बी सो डोमिनेंट एंड सो कंट्रोलिंग कि आपको ऐसे नज़र से देखेगा आप चुप हो जाएंगे. हमारे लाइफ में ऐसे किरदार आएंगे, क्योंकि जब वो आएंगे आपके आवाज़ को दबाएंगे, तभी ही आप लेसन सीख सकते हो दैट नो, आई हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू. अगर आपने वो सप्रेशन की साइकिल तोड़ दी तो आप पास हो गए, तो आपने ये लेसन सीख लिया. लेकिन अगर आपने ये सप्रेशन की साइकिल नहीं तोड़ी, अगर आप डर में ही रह गए, तो यही सप्रेस जो आपके इमोशंस हैं वो थायराइड बन के रह जाएंगे. ओके, अनएक्सप्रेस्ड क्रिएटिविटी विल क्रिएट थायराइड. आपकी एक आवाज़ है, आपने नहीं एक्सप्रेस की उसे, वो आपके गले में इम्बैलेंस करेगी ही करेगी. सो एवरी ट्रॉमा, एवरी काइंड ऑफ माइंडसेट, बिलीफ, फीलिंग अलग अलग शरीर के हिस्सों में जाके बैठती है. कितने लोग हैं आजकल, IBS सबको होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत लोगों को होता है, जहाँ पे आपका पेट कभी भी ठीक नहीं रहता. Your stomach is your solar plexus. The solar plexus is the chakra for control. It's also the chakra for fears. जब फ्लाइट्स नई थी, फ्लाइंग नया था, तो एयर सिकनेस बैग्स रखते थे ना, कि लोग डरते थे फ्लाइट में बैठने से, तो डर लगता था तो उल्टी होती थी. आज कोई एयर सिकनेस बैग्स नहीं है, पर होते हैं दैट उल्टी करने का. Very few flights actually have them. Okay, now it's not there. Have you actually ever seen people throw up in a flight now? No, because flying has become normal. So now people are not scared. लेकिन जब भी डर लगता है, अथॉरिटी से डर लगता है, अपनी बात कहने से डर लगता है, तो पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे. जब भी आउट ऑफ कंट्रोल आप महसूस करते हैं, तो पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे. आज के ज़माने में अनसर्टेनिटी इतनी हाई है, there is no guarantee that you are going to be in control. So more and more people are getting IBS. Till you don't learn that it's okay to go with the flow. It's okay to go with the flow. I'm safe. The day you learn that, your IBS will vanish. लेकिन some people will also say, अरे ऐसा थोड़ी है, मेरा IBS तो जेनेटिक है, मेरे पापा को भी था, मेरे दादा को भी था, क्योंकि उन लोगों में भी यही डर था. Fear of losing control, fear of going with the flow. बीमारी का 9% seed हम सब में है. Okay, all of us are carrying a 9% possibility that every disease can manifest in our body. चाहे वो कैंसर हो, HIV हो, ब्लड डिजीज़ हो, कुछ भी हो.
जब वो 9:27 पे आती है ना, तब वो डिजीज़ हमारे शरीर में मैनिफेस्ट होती है, तब वो डिजीज़ हमारे शरीर में रूप लेती है कि आपको दिखता है कि हाँ आपकी रिपोर्ट्स में आया है. 9 से 27, what is taking it? It's your emotions, it's your lifestyle, it's your way of thinking. अगर आप अपने पेरेंट्स के ही इमोशंस, लाइफस्टाइल, वे ऑफ थिंकिंग, पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, तो हाँ वो बीमारी बेशक आप में भी आएगी. 1 + 1 = 2. That doesn't change. Same emotions plus same mindset is equal to same bimari. That is why they are genetic. But if you drastically change the way your parents thought and the way you are thinking, no bimari. How beautiful is that? Because I read for somebody कि जिसने कहा कि I don't smoke, I don't drink, I have a very clean lifestyle. Even then I got this disease. It was a girl, and she said that it was because of my trapped traumas. So it's a very different way हम आज एक बीमारी को देख सकते हैं. जब हम बोलते हैं कि मेरी नानी, I mean my nani, she passed out of cancer, and of course she was never drinking, she was not smoking, she was leading a more or less clean lifestyle. It's being eating home cooked food kind of stuff. अभी वो अलग बात है कि हम और अंदर जाएं एंड बहुत सारी और फैक्टर्स को देखें कि छोटी मोटी चीज़ें, दैट कौन से बर्तन में खाया था या कौन सा तेल कितने बार रीयूज़ किया था, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट सो मैनी फिट पीपल having a disease, is it because of a trapped traumas, I mean Yes. unprocessed emotions? Yes. I also have to quote, I have a karma coach, Tamanna Chandok. A lot of things that I have learned from her. So I quote her very often because she has said this, that in a lot of lifetimes, you have died with cancer. ओके जहाँ पे आपके कैंसर को क्योर नहीं मिला, या अगर मिला भी तो वो पूरी तरीके से क्योर नहीं हुआ था, यू डाइड विद इट. In your next lifetime, you will be born with it. So you may have cancer as a child, but in your next lifetime, the cancer will get cured. So your job is that unfinished business कि जो आप तब नहीं कर पाए वो आपको दूसरे जन्म में ख़त्म करना ही है ताकि आपकी जर्नी आगे बढ़े. So a lot of these diseases you are also carrying from your past lives. So many things, like एक चीज़ आपने जो कहा, that made a lot of sense to me. Like as a child, जब मैं छोटी थी और maybe during my 20s, मुझे हमेशा लगता था ना बच्चे तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है. मैं एक्चुअली आई वॉज प्रीटी वोकल अबाउट इट, मतलब ऐसे ऑन स्क्रीन नहीं, बट मेरे घर वालों सबको पता था कि मुझे बच्चे खास पसंद नहीं है. जब घर पे कोई बच्चे आते थे तो मैं थोड़ा सा इज्जत के खातिर थोड़ी देर बैठ के फिर मैं अच्छे आराम से निकल जाते थे. ऐसा नहीं कि मैं पूरे टाइम उन लोगों के साथ खेलूँ कूदूँ, टाइम स्पेंड करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. एंड आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट. So later when I wanted to conceive, I was not able to conceive. So that took a lot of time. And when today, I mean, I have 2 children, it's really मतलब एक कभी-कभी मतलब लोगों से सुन के ऐसा लगता है कि it's a very tough job. But I somehow feel that I value it so much more today. But I want to understand the connection कि जो मैं खुद जो मेरे मतलब ऐसे सोच के नहीं था कि I was not a very child person, होता है ना, baby fond of baby person. Did that manifest into not being able to? Yes. यूनिवर्स हमेशा हमारे फेवर में होता है, हमेशा, चाहे हमें वो क्लियरली समझ आए या नहीं आए. लोग मैनिफेस्टेशन में मार यहाँ खाते हैं कि वो लोग लिखते हैं कि मुझे ना ये डेट तक ये चीज़ चाहिए, और वो डेट चली जाएगी, वो चीज़ नहीं मिलेगी. एंड दिल बी लाइक यार ये तो काम ही नहीं करता, दिस डजंट वर्क. इट्स ऑलवेज वर्किंग. लेकिन यूनिवर्स को ज़्यादा पता है कि वाइब्रेशनली व्हेन आर यू रेडी फॉर इट. अगर हम किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं और हम लोगों ने वो चीज़ मांग ली, वो चीज़ आ गई हमारे पास, वो चीज़ आके भी आप खो देंगे because you were not ready for it. Okay?
व्हाट द यूनिवर्स डिड कि पहले आपको ऐसा लग रहा था दैट आई एम नॉट अ वेरी चाइल्ड पर्सन, इट्स ओके, मुझे नहीं मज़ा आता इसमें. द यूनिवर्स सेड नो प्रॉब्लम, जो हुक्म मेरे आका, टेक योर टाइम. फिर एक दिन आप उठ के आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, वो मेटर्नल इंस्टिंक्ट ना अब जाग रही है, अब मुझे चाहिए. द यूनिवर्स विल बी लाइक अभी सिर्फ जागी है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई. मुझे पता है जब तैयार हो जाएगी तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा. अब वो जो वक्त आपके हिसाब से नहीं जा रहा था, दैट कुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू, बट द डिफिकल्टी taught you to value your girls, no? So much. Exactly. So So much. aren't you having a better parenting journey now? Don't you look at them and say कि यार मैंने इन दोनों के लिए कितनी दुआएं मांगी हैं. Isn't it a bigger gift right now? कितने लोगों के पास हाँ मुझे शादी करनी है, 3 महीने में शादी हो गई, 4 महीने में शादी का चार्म भी खत्म हो गया. जब चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिलती हैं हम उसे वैल्यू नहीं कर पाते. तो वो जब चली भी जाती हैं तो लगता है कौन सी बड़ी बात है, गई तो गई, कोई और आएगी. बट दैट वेटिंग पीरियड इज सो इम्पॉर्टेंट. यू एंड मी हैव कम फ्रॉम अ जनरेशन वेयर हमको कहीं पे एक बहुत एक्सपेंसिव सी अगर पेन भी चाहिए थी तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि तुम्हारे बर्थडे पे देंगे. We had to wait We for had to it. wait. तो वो पेन का जो चार्म था ना, हम इतने संभाल के रखते थे उस पेन को. उस पेन के लिए नया कंपास बॉक्स लेते थे, किसी को शेयर नहीं करते थे, उसे स्पेशल कार्ड्स के लिए रखते थे. करेक्ट. वी लर्न so टू true. टेक केयर ऑफ इट मोर. अगर आपने बोला मुझे पेन चाहिए, पापा ने 10 पेन रख दी तो वही इधर उधर सब खो जाएंगी, बिखर जाएंगी. व्हाट इज द वैल्यू? आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट. टाइम is a beautiful teacher. If you wait for something, you will value it more. And for people, I mean, there are so many women out there whom I meet actually. And I can understand that they are going through a very tough phase because नहीं तो आप randomly, किधर भी मतलब रोड पे मिले या एक किधर भी मिले, मतलब ऐसे रैंडम सिचुएशंस बोलते हैं ना, एयरपोर्ट में मिले, एंड दे हैव शेयर्ड देयर they are sharing their ongoing journey, that they are trying to accept motherhood. They are going through certain treatment and all, but nahi ho raha hai. So what do you think, what is the spiritual path, what is the sign, what is that something that you can tell them? Again, going back to what your soul planned before it was born. Okay, कुछ भी रैंडम नहीं है. कभी कभी हमें लगता है कि यार ये जो अर्थ का स्कूल है ना, अर्थ का करिकुलम है, बहुत डेंस है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ये आसान नहीं है. तो हर एक सोल नहीं चूज़ करता कि मुझे यहाँ पे जन्म लेना है. बोलेंगे बाबा इतना कंपटीशन, इतना इमोशन, इतना ड्रामा, ट्रॉमा, सुख है, दुख है, कोई गुजर रहा है, कोई जी रहा है, नॉट रेडी, नॉट रेडी, नॉट रेडी. तो कुछ सोल्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे है ना अब काफ़ी वक्त तक इसके बाद वापस अर्थ में नहीं आना. इन अ वे आई वांट दिस टू बी माय लास्ट. वो लास्ट तो नहीं होता क्योंकि लास्ट आपका मोक्ष होता है, लेकिन हर सोल के पास ये ऑप्शन होता है कि मुझे शायद अब और 200 साल वापस नहीं आना, मुझे और 100 साल वापस नहीं आना. तो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे अब कुछ वक्त तक वापस नहीं आना, आप एक ऐसी लाइफ टाइम चूज़ करेंगे जहाँ पे आपके बच्चे नहीं होंगे. क्योंकि अगर बच्चे हैं तो वहाँ पे इतना अटैचमेंट होगा कि आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को वापस आने से. इट्स लाइक यू हैव कमिटेड. आप यहाँ पे मेरे साथ पॉडकास्ट शूट पे हैं, शायद 60% ऑफ योर अटेंशन इज विथ मी राइट नाउ, 40% इज विथ योर चिल्ड्रन. यू कांट सेपरेट द चिल्ड्रन फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस वंस दे आर बॉर्न. ठीक है. तो द सोल फील्स लाइक द ओनली वे आई कैन टेक अ ब्रेक from this reincarnation process is if I don't have children. लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यार ये तो मेरा ही सोल प्लान था. और फिर ट्राई करते हैं, IVF करते हैं, IUI करते हैं, पूजा कराते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं चलो अडॉप्शन ही कर लेते हैं. अब ये भी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली भी सी कि अगर आपके सोल प्लान के हिसाब से, आपके कार्मिक चार्ट के हिसाब से, आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से या कुंडली के हिसाब से अगर आपके नसीब में बच्चों का सुख नहीं है और अगर आप फिर भी बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो वो बच्चा आपको सुख से ज़्यादा तकलीफ़ और दुख दे के जाएगा.
Really, because it's going against the plan you wrote. But if somebody says we want to adopt, उनका already एक बच्चा है, the second child that they will adopt will give them tremendous joy. क्योंकि बच्चों का सुख है आपके नसीब में, आपने लिखा है. बहुत ध्यान से सोच के, of course adoption is it's very noble, you must do it. But then I always tell them कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं और अगर आपको अडॉप्ट करना है तो उस बच्चे को किसी भी और तरीके से आप सपोर्ट करने की ट्राई करें, वरना वो बच्चा आएगा आपके लाइफ में, अननोन सोर्स है, कैंसर्स, ट्यूमर्स, बाइपोलर, बॉर्डरलाइन, सुसाइडल टेंडेंसी, एडिक्शंस, तो आपको लगेगा कि यार तकलीफ ही तकलीफ आ गई हमारे लाइफ में, क्योंकि आप अपने ही सोल प्लान के अगेंस्ट गए हैं. ये आपका प्लान नहीं था. हम लोगों ने अभी कुछ एक न्यूज़ पढ़ा. आई मीन यू नो दिस लेडी हु हैज़ अडॉप्टेड अ गर्ल व्हेन शी वाज 4 months or 4 days old and killed her and went, oh my god. So अगर यू नो अडॉप्ट करना है या जो भी, देर आर, साइंस हैज़ बिकम वेरी एडवांस्ड, यू नो देर आर सरोगेसी हो या ऐसा कुछ, ऑल दीज थिंग्स. क्या आप पहले से मतलब यू रीड योर चार्ट एंड देन गो अहेड विथ इट? अगर आपके नसीब में वो बच्चा होना है तो नेचुरली ही हो जाएगा, या IVF 1 to 3 साइकिल्स हो जाएगा. लेकिन कुछ लोग हैं ना जो 10-10, 12-12 साल ट्राई कर रहे हैं. तब आपको नेचर का साइंस समझ जाना चाहिए कि शायद ये मेरे लिए नहीं है. और अगर नहीं है फिर भी आप ट्राई करें, देन वी वुड हाईली रिकमेंड दैट ईदर यू गेट योर आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक्ड और यू गेट योर हॉरोस्कोप चेक्ड, एंड इफ इट्स रिटन देन गो फॉर इट. अदरवाइज find your joy in other things. Oprah Winfrey, who is one of my idols, मेरी पूरी ज़िंदगी I have literally charted out in the way she charted her life out. She said this very beautiful thing. She's saying, मुझे अब जाके समझ में आ रहा है कि मेरे कभी बच्चे क्यों नहीं हुए. क्योंकि अगर मेरे पास कोई बच्चा होता जो मेरा अपना होता तो मैं वहाँ पे इतनी अब्जॉर्ब हो जाती कि मैं शायद जो दुनिया के लिए कर रही हूँ मैं नहीं करती, मैं मेरे बच्चे के लिए सेल्फिश हो जाती. लेकिन क्योंकि मेरा एक खुद का बच्चा नहीं था तो आज मैंने साउथ अफ्रीका में हज़ारों लड़कियों को अडॉप्ट किया है, वो सब मेरी बच्चियां हैं. समटाइम्स वन वॉइड विल रीडायरेक्ट यू टूवर्ड्स मच बिगर थिंग्स इन योर लाइफ, मच बिगर थिंग्स. Such a beautiful way of looking at it. Yes. Such a beautiful way of looking at it. This is the only way of looking at it. Because any other way of looking at it will only keep you in victim zone. Life is meant to be enjoyed. Life is meant to live your experience to the fullest. कोई भी लोगों को लगता है कि हम लोगों ने कुछ ऐसे पाप किए हैं कि भगवान हमको जहन्नुम में भेजेगा. They have this concept of heaven and hell. There is no heaven and hell. जब आप गुस्से में हैं, सैड हैं, अपसेट हैं, डर में बैठे हैं, विक्टिम जोन में बैठे हैं, अपने सेल्फ डाउट्स में बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका हेल है. वो आपने खुद क्रिएट किया है, वो आपके अंदर है. जब आप खुश हैं, आज़ाद हैं, आबाद हैं, आप खुशियाँ फैला रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस में बैठे हैं, आप देख लेंगे भाई ऊपर वाला बैठा है ना, मैं कर लूँगी कुछ, तो वो आपका हेवन है. It's all inside of us. We are fully equipped. हर एक इंसान भगवान का एक टुकड़ा है. You have to see yourself कि अगर एक बहुत बड़ा शीशा है, आईना है, अगर वो 100 टुकड़ों में टूट गया, हर एक टुकड़ा फिर भी एक आईना ही है ना. You can still see yourself in it. We are just like that. We are a small part of the universal consciousness. All of us. In fact, universal consciousness को हमारी ज़रूरत है कि भाई जो consciousness का purpose है वो तुम्हारे थ्रू बाहर आए. जो हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जो हम एक मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं कि सब लोग एक हैं, वननेस है, प्यार है, कंपैशन है. द यूनिवर्स वांट्स अस टू एक्सप्रेस इट. सो हाउ कैन इट नॉट गिव अस द टूल्स? How can it not give us the gifts that are needed to express it? We are all whatever there is. How beautiful. अभी आपने बोला that the soul
chooses its purpose, Yes. before the soul is born. और हर एक माँ को भी बोला जाता है in today's parenting that the child, you have not brought the child to earth, the Child has come the through child you. has come through you. The soul has chosen you. That's right. You have not chosen her. You That's have right. not given birth. That's right. The soul has chosen you. Yes. So just be thankful to it. Learn from the child every day. I want मतलब क्लियरली मैं इस चीज़ को समझना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से एक्चुअली ये चीज़ हुआ है. हाउ हैज़ दैट सोल चोजन मी, and like a mother, how has the child chosen the mother, and how which way कि माँ उससे किस तरीके से सीखे and feel grateful. It is very true that the soul is always choosing the mother. हम सब अपनी कहानी खुद लिखते हैं. कौन सी एज पे क्या होगा, कहाँ मुझे पैदा होना है, कौन सा लेसन सीखना है. इट्स सिंपल. इट्स लाइक सेइंग कि मुझे न्यूयॉर्क जाके पढ़ना है बिकॉज आई वांट टू लर्न एक्टिंग. ओके, सो आई वांट टू डू इट इन न्यूयॉर्क. आप पैसे भर देंगे, एडमिशन मिल जाएगा, चले जाएंगे. आपके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन भी रहता है कि चलो न्यूयॉर्क नहीं तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा. ओके, योर चॉइस. इन द सेम वे द सोल इज ऑल्सो सेइंग इस बार मुझे सीखनी है सर्विस. ओके, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, दैट्स व्हाट आई वांट टू लर्न. और अब ऊपर से स्कैनिंग होगी दैट हु इज़ द राइट पर्सन, हु इज़ द राइट पर्सन, हु इज़ द राइट पर्सन. ऑफ कोर्स वी आर ऑल बॉर्न इन सिमिलर सोल ग्रुप्स. बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं. समटाइम्स वन ग्रुप कैन बी 3000 पीपल जो अपने अपने अंदर ही, इट्स लाइक अ सोसाइटी. ओके, कि आपस में role divide आपस में कर ही रहे हैं. रोल्स डिवाइड कर लेते हैं. Because I had read a book familiarity long रहती है. back, Many Lives, Many Masters, Masters. Brian Weiss. Yes. Yes, Yes. तब the soul of the same kind are born जी. together again and again. Yes, they are our soul groups. So within our own soul groups, we'll be like, यार लास्ट जन्म में ना ये सोल ने बहुत सेवा की थी मेरी. मतलब मैं जब बीमार थी तो 24 घंटे शी हैज़ नर्स्ड मी. चाहे वो लास्ट मेरे लाइफ के 15 दिन भी क्यों ना हो, बट आई हैव ट्रिमेंडस अटैचमेंट टूवर्ड्स हर. ओके, इन दिस लाइफ टाइम नो आई एम गोइंग टू बी born like her sister. This lifetime I will do this like that. So two souls also sit together and say, will you play this role? I will play this role for you. I will come at this time. I will come at that time. So yes, we choose our mothers. And ऐसे फैमिली को हम चूज करते हैं कि उस फैमिली में जाके जो हमारा पर्पस है उसको उड़ान मिल पाए. ओके, मुझे नहीं पता था कि मुझे थेरेपिस्ट बनना है in this lifetime. मुझे तो actually air hostess बनना था because I just wanted freedom, I thought. But I chose two parents. My mother, who has always been a housewife, लेकिन उसने जिंदगी भर सिर्फ लोगों की सेवा ही की है. My father is an astrologer by shock. 40-45 years of his life, he did astrology as a service, muft. Never charged a penny. He has his own business, but he is known as that person who does fantastic astrology. Now he is my father. Now I'm born and I'm unaware कि यार ये क्या इन लोगों का रोल है मेरी लाइफ में. लेकिन मेरा जो forgotten soul purpose था to be of service to humanity, it has come very naturally to me because of watching my parents. My mother has always put herself behind. She has always put other people first. My father has also always forgotten himself, always put other people first. तो for me, putting other people first और उनके दुख में उनका साथ देना, उनके तकलीफ में उनका साथ देना, उनको naturally counseling करना, it has just come by watching my parents. So when I came into this field by default, and I came after my own cycle of depression and trauma and whatnot, I feel like the field has chosen me. I have not chosen this field. But when I came in, I felt like, अरे हाँ यार, मैं तो इधर ही belong करती हूँ. Now it makes complete sense that why did I choose my parents? And my mother came from huge trauma. She lost both her parents when she was 10 years old. And she had 4 other siblings. The youngest one was 2.
I have experienced her trauma. I have experienced how her life has gone. I have experienced how my father has taken care of her. I have experienced how she has taken care of other people, क्योंकि उसके खुद के पेरेंट्स नहीं थे तो उसने सब लोगों में अपना माँ बाप ढूंढा है. So that level of warmth that I have seen, I operate from that level of warmth. Would it have been possible for me to be a therapist if I came from a very privileged background जहाँ पे सब सही था, जहाँ पे मैं प्रिंसेस थी? बिल्कुल नहीं. कौन बैठ के चूज़ करेगा कि चलो आज 10 घंटे बैठ के लोगों को रोता देखते हैं और उनको कंफर्ट करते हैं? Nobody chooses this. Either you are meant for this or you are not meant for this. So, सोचिए, there's a person who is born in a very underprivileged house, very very underprivileged. So, मतलब क्या उसको मतलब लाइफ का प्रेशर उसको सिखा सकता है टू गो अप एंड डू समथिंग डिफरेंट फॉर हिम? और कभी कभी ऐसा होता है, आई मीन दे आर बॉर्न देयर एंड दे जस्ट पास अ लाइफ टाइम एंड इट्स गॉन, मतलब कुछ भी नहीं कर पाते हैं. On the contrary, I mean, do you think people who are born of privilege, can they find out their soul's purpose? So which one? मतलब मैं ये All and everything. All and everything. जैसे मैंने आपको बताया कि एक सोल पर्पस ये है दैट मेक योर वॉइस हर्ड, स्पीक योर ट्रूथ इवन इफ योर वॉइस इज शेकिंग. ओके, एक और सोल पर्पस ये है दैट लर्न टू एंजॉय द स्मॉल थिंग्स. ओके, अब अगर किसी ने ये चूज़ किया है दैट आई हैव टू लर्न टू एंजॉय द स्मॉल थिंग्स, दे कुड हैव ऑल्सो चोजन अ लाइफ टाइम वेयर उनके ज़िंदगी में बिग थिंग्स आएंगी ही नहीं. आपने रास्ते पे देखा है बॉम्बे में जो बहुत अंडर प्रिविलेज बेगर्स जिसको हम बोलते हैं, जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे होती है. अगर पानी का टैंकर है तो पानी का टैंकर पीछे से खोल के वो सिग्नल पे उसी पे नहाते हैं और नाचते हैं. हम लोग अपने फर्स्ट क्लास 5 स्टार बाथरूम्स में भी सोचते रहते हैं व्हेन वी आर टेकिंग अ शावर, अब क्या, ये क्या, वो क्या, ऐसे क्यों हो गया, बैठ के रोते हैं हम वहाँ पे. बट दीज चिल्ड्रन दे इंजॉय द स्मॉल थिंग्स और इतना जॉय ढूंढते हैं. वो सुबह किसी ने पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट दे दिया है और किसी ने और 5 रुपए की चाय पिला दी, उसमें खुशी ढूंढनी ही ढूंढनी है. वो तो हम बैठ के जज करते ना कि अरे अरे इतनी बुरी लाइफ क्यों. उनके हिसाब से तो बुरी नहीं है. अगर आप उनको अपने घर में लेके आओ और बोलो नहीं तुम आज से यहाँ पे रहोगे, उनको शायद घुटन होगी. किसी इंसान को अगर ज़िंदगी भर ये आदत हो गई है ना कि वो रेलवे ट्रैक पे सो के वहाँ पे उसकी ज़िंदगी काटेगा, आप अगर उसको हिल्टन के 5 स्टार होटल में लेके जाओ तो वो बेड पे सो नहीं पाएगा. वो नीचे सोएगा और अपने यूट्यूब पे लगाएगा छिक 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 छिक, तब जाके उसको नींद आएगी. सो enjoying the small things could come with a life plan like that. like there are people who do not have a lot of privilege. So कभी कभी वो मतलब सल्क करते रहते हैं, लाइफ कुछ है नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर मी. तो एंड देन देर आर प्रिविलेज्ड पीपल ऑल्सो आई हैव सीन हु आर सल्किंग कि क्या ही करूँ, मतलब मम्मी पापा मुझे इसमें प्रेशर डाल रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, इसमें मतलब मुझे I've seen a popular actor, somewhere popular actor telling that माँ बाप ने ही मुझे सब कराया, मेरे तो इतना इच्छा नहीं था, मुझे तो बहुत दुख होता है, मतलब आई डिड नॉट लिव अ नॉर्मल चाइल्डहुड एंड ऑल. तो आई हैव सीन ईदर वेज, मतलब सब लोग सल्क कर रहे होते हैं. सो व्हाट इज़ दैट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों सेक्शन में दैट पर्सन कैन हैव टू, मतलब वो जगह से अपने आप को बाहर लाने का. आई यू अंडरस्टैंडिंग? I am completely understanding. Life will put us in a victim position to be able to give us an opportunity. Okay? सबको थोड़ा थोड़ा तो ट्रॉमा होता ही है ना. अब उस विक्टिम पोजीशन में अगर हम लोग बैठ जाएं और कंफर्टेबल हो जाएं और दूसरे लोगों को ब्लेम करने लगे कि भाई तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, तो आप जिंदगी भर सल्क करेंगे, सल्क करने की आदत हो जाएगी.
विक्टिम पोजीशन में बहुत पावर है, क्योंकि अगर एक इंसान को आदत हो गई कि देखो देखो मेरे लाइफ में कितना बुरा हुआ है, कितने लोगों ने मेरे साथ कितना ही बुरा किया है, तो उनको एक एंटाइटलमेंट मिल जाती है। वो हमेशा गुस्से में रह सकते हैं, वो हमेशा दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं ये बोल के कि तुम्हें पता है मेरी लाइफ में कितनी तकलीफ हुई, अब तुम्हें मेरे लिए ये करना चाहिए, अब तुम मेरी सेवा करो क्योंकि मैंने बहुत सहा है। ये एक स्टैंस है, आप ये भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे खुशी नहीं है, सिर्फ कंट्रोल है और रोना है। बट पीपल गेट कंफर्टेबल इन दियर विक्टिम जोन्स। दूसरी पोजीशन ये है कि चलो लाइफ ने आपको विक्टिम की कुर्सी में थोड़ी देर बिठा दिया। अब आप सोच सकते हैं कि यार यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है यार, मतलब मेरा पावर कोई और ले रहा है, आई एम नॉट एबल टू फोकस कंप्लीटली मैं क्या ही करूँ कि मैं यहाँ से उठ जाऊँ। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने आप की सिचुएशंस को चेंज करने की, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट चॉइस, दिस इज़ नॉट एन ईजी चॉइस। यहाँ पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। यहाँ पे आपको ये देखना है दैट अच्छा दिस डिडंट हैपन टू मी, दिस हैपेंड फॉर मी, इट हैपेंड फॉर मी, व्हाट्स इट ट्राइंग टू टीच मी, व्हाट्स इट ट्राइंग टू टीच मी, व्हाट्स इट ट्राइंग टू टीच मी। Oh, it's trying to teach me that I have a choice. Even though it's difficult, I still have the choice. अगर मैंने ये डिफ़िकल्ट चॉइस ले ली, अगर मैं यहाँ विक्टिम पोजीशन से उठ गई, तो मेरी लाइफ में पूरी तरीके से चेंज कर सकती हूँ। एंड देन यू विल बी ऑन द अदर साइड। फिर अगर आप अदर साइड पे चले गए ना, तो किसी दिन आप ऐसे फूल फेंकेंगे दैट यार थैंक माई ट्रॉमा, आई एम थैंकिंग माई ट्रॉमा, थैंक यू फॉर चूजिंग मी, थैंक यू बिकॉज आई लर्न सो मच बिकॉज ऑफ यू। हमारे सारे ट्रॉमा, आई सी देम लाइक अ स्पिरिचुअल जिम। ओके, आप ट्रॉमा में जब बैठते हैं तो दिमाग चलाना पड़ता है कि कैसे मैं यहाँ से उठूँ, मैं क्या ही कर लूँ। एक मसल मूवमेंट होती है, एक स्ट्रेंथ आती है कि यार ऑलरेडी रॉक बॉटम पे हैं, अब यहाँ से नीचे तो नहीं जा सकते, अब यहाँ से उठना है, क्या करें उठने के लिए। स्पिरिचुअली यू आर बिकमिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। You see the Gen Z that is there, the new generation that is there. उनके पेरेंट्स जो हैं मिलेनियल्स, बूमर्स, मिलेनियल्स को बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिली, दे हैड टू वर्क फॉर इट। तो उनको लगा कि यार हमको जो तकलीफ़ें हुई ना, वो हमारे बच्चों को हम नहीं होने देंगे, हमने जो सहा वो इन्हें नहीं सहने देंगे। तो सब कुछ प्लेटर पे दे रहे हैं, सब कुछ। अब जेनजी को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुंह से निकला नहीं और मेरे मम्मी पापा ने मुझे ला के दे दिया, चाहे वो नया बिजनेस हो, चाहे वो नई गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो जो भी हो। आई डोंट हैव टू वर्क फॉर एनीथिंग। द जेनजी इज़ अ वेरी फ्रैजाइल जनरेशन, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल जिम हुई ही नहीं, उन्होंने कभी ना सुना ही नहीं, उनको स्ट्रगल करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने स्ट्रगल करके उनको दे दी। So now we don't know, we are yet to figure out how is the Gen Z going to cope? And we already have Gen Alpha and Beta. Yes, to follow up. absolutely. Absolutely. So if we look behind, think about it. Didn't your hardest moments make you stronger? Absolutely. So are our hardest moments our villains or our heroes? They are our heroes. Absolutely. They have shaped us. That's it. If we understand that, you can't be sitting in victim. But for the brain, known pain is pleasure. जाना पहचाना जो दुख है, वो कहीं ना कहीं हमारा सुख बन जाता है। How beautiful. It is like diving into the conversation with you. ऐसा लग रहा है कि मैं एक खूबसूरत से समंदर में मैं कूदी हूँ। हर तरफ ऐसे सवाल है विच कैन जस्ट एनलाइटन मी, एंड देन देर आर थिंग्स दैट आई एम ऑलरेडी सीइंग। मतलब आपकी बात सुन के मैं विजुअलाइज कर रही हूँ ऑफ थिंग्स अराउंड, यू नो। आई हैव नोन पीपल हु हैव जिन्होंने मतलब हमारी शुरुआत साथ में थी, बट देन जब भी मैं बोलती थी चल ये करने चलते हैं, नहीं तबीयत आज थोड़ी ढीली है, एंड यू नो दैट पर्सन enjoyed living that life. Yes. लोगों को लगता है कि हमें fear of failure है। हाँ है, कुछ लोगों को fear of failure कि मैं इस ऑडिशन के लिए जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, नहीं, मुझे वो एक्सपीरियंस ही नहीं करना। फेलियर बहुत पेनफुल होता है, रिजेक्शन बहुत पेनफुल होता है, तो उससे अच्छा मैं जाऊँ ही ना।
ओके। फियर ऑफ फेलियर से भी बड़ा होता है फियर ऑफ सक्सेस, कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो भाई बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, मतलब और काम करना पड़ेगा, मतलब और अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा, मतलब और बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मतलब और पैसा आएगा, मतलब और टैक्स भरना पड़ेगा। ये भी होता है। Oh my God, fear of success is a really big thing. So they don't want it. Or they don't want it also because a lot of them believe that they don't deserve it. मैं कौन होती हूँ सक्सेसफुल होने वाली? मतलब मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरे पापा मिडिल क्लास, मेरे दादा मिडिल क्लास, मेरे परदादा मिडिल क्लास, मैं कौन होती हूँ मिडिल क्लास से ऊपर जाने वाली? Our belief systems don't allow us to go beyond. ये भी लगता है कि यार हमारे फ्रेंड्स चेंज हो जाएंगे, ये भी लगता है लोगों को कि अगर वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या खुशहाल रिलेशनशिप में नहीं हैं, अगर उनको लगता है कि यार मैं सक्सेसफुल हो गई ना तो मैं ये बंदे को छोड़ दूंगी, हाय मेरी लाइफ तहस नहस हो जाएगी, रहने दे, पड़े रहे इधर ही। वी डोंट वांट टू चेंज एवरीथिंग, बिकॉज ये भी एक सच्चाई है कि जब आप कुछ मांगते हैं, जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आपकी पूरी दुनिया बदल देगी। क्या आप दुनिया बदलने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपनी दुनिया बदलने के लिए रेडी हैं? 95% ऑफ द पीपल से नहीं। तो सक्सेस नहीं आएगा आपके पास, आप ही नहीं आने देंगे, क्योंकि आपको डर लगता है, बदलाव से डर लगता है। बट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो ईदर यू गो विद द फ्लो और द यूनिवर्स विल टेक यू बैक अप। कोविड में जितने लोग गुजरे हैं, I literally call it the spiritual voluntary retirement scheme. जब मास डेथ्स होती है ना बहुत ज़्यादा, या ऐसे प्लेग्स होते हैं, एपिडेमिक्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गुजर गए एक साथ, ये सोल्स तैयार ही नहीं थे बड़े चेंज के लिए। अब आप 10 साल में देखेंगे हमारी दुनिया जैसी लगेगी ही नहीं। मतलब आपके बच्चे कंट्रोल करेंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि आप और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिर नहीं हैं। आई कैन बेयरली यूज़ वन मोर फीचर अदर देन माई व्हाट्सएप एंड माई कैमरा ऑन माई फ़ोन। अगर मेरे को कोई नया अपग्रेडेड वर्जन भी दे दे तो मैं बोलूँगी अरे भाई ये तो टेंशन है, नहीं करना। तो ये जो नया युग आने वाला है बिल्कुल अलग सा, जहाँ पे रोबोट्स होंगे, अलेक्साज होंगी, कुछ और ही एनर्जी कंट्रोल करेगी हमको। जो भी सोल्स AI के वर्ल्ड के लिए रेडी नहीं है, वो AI के वर्ल्ड के पहले चले जाएंगे। इट्स अ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। नहीं बाबा ये वाला नहीं, हम लोग बाद में आएंगे, जब वापस कभी सत्युग आ जाएगा तब आएंगे, फिलहाल नहीं, बाय बाय। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो मुझे पेरेंटिंग से मैं थोड़ा सा वापस जाती हूँ। वंस एज अ मदर अगेन, ऐसा लगता है पेरेंटल एक्सपर्ट्स हमें बोलते हैं द न्यू स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग इज़ टू अंडरस्टैंड देम, टू से नॉट टू से अ लॉट ऑफ नो। मतलब वो जो क्राई भी कर रहे हैं, अगर फ्रस्ट्रेटेड भी है, तो समझना वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। तो इन सारी चीज़ों के बीच में आई मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक टुडेज मॉम्स, नॉट ओनली मी, अ लॉट ऑफ माई मॉमी फ्रेंड्स, मैं यही चीज़ नोटिस करती हूँ कि बच्चों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हम एड्रेस करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में जिस तरीके से हमारी पेरेंटिंग हुई हम वैसे नहीं रखते हैं। तो डू यू थिंक, अभी मुझे ये भी जानना है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते में, मतलब एक डेफिनेट अभी ये भी समझ आ रहा है कि एक प्रेशर ज़रूरी है, एक कहीं ना कहीं एक बाइंडिंग, एक रिजेक्शन को हैंडल करने वाली एक सिचुएशन, मतलब एक इतना टफ बनाना भी ज़रूरी है उन लोगों को कि बचपन से कभी रिजेक्शन हुआ ही नहीं। घर हाउस फ्रंट में भी मम्मी पापा ने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। तो व्हेन द सोसाइटी इज़ वेरी टफ, यू फेस रिजेक्शन, तो एक गिव अप वाली एटीट्यूड आ जाती है। सो व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू? पता है मैं ज़िंदगी भर मैथ्स में फ़ेल हुई, हाँ, लेकिन आज जाके ये समझ आता है कि जब मेरी मम्मी ने मुझे एक चांटा मारा ना, वो चांटे की वैल्यू लगभग 60,000 रुपये थी।
क्योंकि वो एक चाटा मेरे लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें फिक्स करता था जो आज 10 सेशन थेरेपी के करते हैं. अच्छा, ओके, गॉट इट. हाँ. It's like that देखो हमको ना हमारे पेरेंट्स की पेरेंटिंग बड़ी रूडिमेंट्री थी. जो उनको समझ में आया उन्होंने किया, जो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ किया इन्होंने पास ऑन कर दिया. ठीक है, इट वॉज नॉट अ वेरी रिफाइंड वर्जन, बट दैट unrefined version created very refined children. We were scared of our parents. We knew our boundaries. We knew exactly what we can do and what we can't do. And that kept us safe somewhere. हमको किसी भी हालत में हमारे पेरेंट्स जैसा नहीं बनना था. Because we had complaints with our parents. So, because we didn't want to be like our parents, we created a perfect recipe by which we will have a trophy child. Designed child. Okay? ट्रॉफी चाइल्ड तो हम ले आए, लेकिन अब हमारे बच्चों को हर चीज़ में ट्रॉफी चाहिए, कुछ किए बिना, कुछ भी किए बिना. मैंने ये भी देखा है स्कूल्स में कि अगर किसी का बच्चा रेस नहीं जीतता तो उसके पेरेंट्स जाके प्रिंसिपल से कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे को ट्रॉफी देनी ही पड़ेगी आपको, हम पैसा भरते हैं आपको, मेरा बच्चा रो रहा है, आप ट्रॉफी तो दे के ही रहेंगे. तो अब हर स्कूल मतलब सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग का सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग का सपोर्टिंग का सपोर्टिंग एक्टर, हर बच्चे को ट्रॉफी दे रहे हैं. मतलब कुछ स्कूल्स में मतलब यू नो जब रेस होता है हाँ, तो सबको प्राइज देते हैं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि बच्चों को छोड़ो, पेरेंट्स को बुरा लगता है. और ये हम इतनी डेंजरस चीज कर रहे हैं बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ जनरेशन ऑफ एंटाइटल्ड ब्रैट्स who will not want to work for anything themselves. आपने तो दे दिया आपके बच्चों को जो भी देना था, अगर बाहर वाली दुनिया नहीं देगी, they are going to be so fragile, वो क्विट करके आ जाएंगे. They will go and tell the boss, मुझे 50% रेज चाहिए. बॉस ने बोला क्यों भाई? बोलेंगे you can't give me a 50% raise, I'm quitting. Or they will commit suicide. But that is not how the world works. This is us. Our generation of parents has to realize that somewhere your children need to be scared of you. Somewhere your children need to fear you. That's the only way you can protect them. I'm not saying go back to violence. I'm not saying go back to hitting. But it is very important to say no where no is needed. You can't be a yes parent all the time. You can't. You are damaging your children. आपको आपके बच्चे से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है. इतना प्यार है कि आपको उन्हें ज़मीन पे क्रॉल करने भी नहीं देना है. आप बोलेंगे नहीं नहीं, तू मेरी गुड़िया है ना, तुझे जहाँ जाना होगा मैं तुझे उठा के चलूँगी. आप 5 साल तक आपकी गुड़िया को अगर नीचे ही नहीं रखा और उसके नीज डेवलप नहीं हुए, एंकल्स डेवलप नहीं हुए, तो आपने उसे प्यार से सर्विस दी है या डिससर्विस दी है. यू हैव डिसेबल्ड देम फ्रॉम डेवलपिंग देयर लिम्स. कभी नहीं चल पाएंगे, कभी भी नहीं चल पाएंगे. मतलब यहाँ पे ये चलना इस जिंदगी के रास्ते में चलना. वी हैव टू प्रिपेयर देम फॉर लाइफ. वी कांट जस्ट से वी आर योर लाइफ. तुम बोलो ना, हम लोग तो वेटर हैं तुम्हारे लिए, तुम बस ऑर्डर दो, हम लोग लेके आएंगे. तो फिर वो क्या करेंगे? हाउ विल दे फाइंड देयर जॉय? बिकॉज जॉय कम्स फ्रॉम सॉल्विंग लाइफ्स प्रॉब्लम्स. If you don't allow them to have a problem, how will they ever be happy? They can't. They will hate you for it. I'm sure my you know moms who write to me day in and day out, छोटे मतलब छोटे प्रॉब्लम, बड़े प्रॉब्लम, हर एक के लिए अपना प्रॉब्लम बड़ा होता है. तो they would know how to navigate through their things because mom guilt is a big thing. आप करो तो भी आप गिल्टी फील करते हो, आप नहीं करो तो भी आप गिल्टी फील करते हो, आप अपना करियर देखो तो भी आप गिल्टी फील करते हो, आप अपना करियर छोड़ के बच्चे के पीछे पूरा वक्त निकाल दो तो भी आप गिल्टी फील करते हो, ये सोच के कि मैं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी को लेके, मतलब माई लाइफ हैज़ एंडेड. सो इट्स अ वेरी टफ फेज टू बी इन. Also a very beautiful phase. It's just the way how you look at it. So I would say I got a very beautiful answer, balance. I want to tell all those mothers who feel guilty. जब आप अपना खुद का काम करते हैं, first of all, जब आप अपना खुद का काम करते हैं, you are honoring yourself.
you are honoring what you are born for. क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने बच्चों और अपने घर तक नहीं है. You have a responsibility towards the world around you. And through the work you are doing, you are fulfilling that responsibility. Okay, it's just the way we pay taxes to thank the government for the support it is giving us, right? We have to give back to the world through our work. Second, आप सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं पैसा कमा रही हूँ अपने बच्चों के लिए. You're not just going out to work to make the money. No, 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 no. जब आपका बच्चा आपको देखता है काम करते हुए, रोज सुबह उठ के तैयार होके, showing up at work, coming back late in the night, spending time with them, your child is learning discipline. Your child is learning कि okay, this is how life is. Oh, this is what I have to do. Oh, this is what I have to be. They learn to value hard work because they have seen you work hard. Plus, children are very proud of you. You will see that your children will look at you with a sense of pride. That this is what my mother does. That does not mean that if you have made the choice of a homemaker, that your children will not be proud. That has separate benefits altogether. I have been a homemaker for 15 years of my life. Till my children were 9, 10 years old, I was a homemaker. That is also amazing. Because आपने डिसाइड किया है कि मैं दुनिया को तो दे दूंगी बाद में जब दे दूंगी, लेकिन पहले मैं अपने बच्चों को दूंगी. और जो मैं अपने बच्चों को बनाऊंगी ना, that will be the gift to the universe. This way or that way, you are serving the world. Whether in the job of a homemaker or in the job of you working outside, you are not less. You don't have to compete. You do what makes your soul happy because that is what you are born for. To make your soul happy. Ask yourself this, what makes me feel alive? Does staying at home watching your children make you feel alive? That's it. That's your purpose. Does going out and facing the camera make you feel alive? That's it. That's your purpose. Sitting in the kitchen and packing 300 tiffins as a catering business makes you feel alive? That's it. That's your purpose. Everybody's purpose does not have to be to change the world. Your purpose is expressing yourself. और जो आपके पर्पस के लिए जो टूल्स हैं वो आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, आप उन टूल्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. And also to feel proud of what you are doing. Only Yes. then your children will feel proud. Exactly. हमारे बच्चे कभी नहीं सुनते. Children don't listen to parents. They watch you. They are always watching you. So they will become who you are. They will not listen to the advice you're giving. They will become who you are. So you want to raise better children, you raise yourself first. So beautiful. I think I got such a beautiful एक क्लैरिटी के साथ एक जवाब कि आप अगर काम पे भी जा रहे हो, आप अपने आप को कोसते हुए, डरते हुए, गिल्टी फील करते हुए नहीं जाओ. दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन एवरीथिंग. और शायद तब आपके बच्चे बोलेंगे कि मेरी माँ मुझे छोड़ के काम पे जाती थी. डू इट विथ सो मच grit, do it with so much pride. That will get reflected and your children will feel proud of you. You get it now? I got it now. You are the perfect mother for what your child needs to learn. You cannot be a cooler mom. You cannot be a more stricter mom. You cannot be a more conservative mom. You are the perfect mom for what your child needs, for what your child's soul needs. Remember, they have chosen you. So you can definitely have a better relationship with them, but don't doubt yourself like a mother. There cannot be a better mother for your child than who you are. It's impossible. Because they have chosen Yes. us. So beautiful. और भी मुझे एक चीज़ जाननी थी. I mean, I know थोड़ा सा एकदम से जंप है टॉपिक. Souls of the same, family are born again and again together. But then somewhere you said that the कभी-कभी souls बहुत वक्त ले लेते हैं जन्म लेने के लिए.
और कभी कभी जल्दी जल्दी जन्म ले लेते हैं. सो डू यू थिंक कि मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि मेरे दादाजी वापस आ गए हैं या मेरी नानी वापस आ गई, इज दिस थिंग लाइक इमीडिएट बर्थ पॉसिबल? Of course it's possible. It depends on the soul. Okay? For example, आपने 10th grade ख़त्म किया है. आपको naturally 4 महीने की छुट्टी मिली है before your college starts. Okay? But you say यार मैं 4 महीने क्यों वेस्ट करूँ? मैं वो साइड वाला कोर्स ले लेती हूँ. 3.5 महीने मैं वो कोर्स करूँगी, फिर मैं कॉलेज ज्वाइन करूँगी. कुछ लोग होते हैं ना ज़्यादा एंथू कटलेट. They want to do so much more even in the breaks. It's all the way up to the soul. That if you want to come back fast, if you feel like नहीं मैं नहीं दूर रह सकती मेरे फैमिली से, मुझे जाना ही जाना है, मुझसे उनका दुख नहीं देखा जा रहा, देखो कितनी तकलीफ में है, फट करके somebody will get pregnant and you will find yourself right there in that house. But if you say भैया बहुत हो गया, मुझे अब छुट्टी दे दो, 1 साल के लिए कोई मुझे बुलाना नहीं, कोई मुझे सताना नहीं, याद नहीं करना, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, then you'll take your time. But even when people are in the soul world, वो सो नहीं रहे हैं. They are constantly guiding you from the soul world itself. The soul world has a very different curriculum. Is it possible for you to call a soul, like tell a soul that, you know, be born with me? Yes. Yes, you can. Your deepest desires always manifest. But of course, it needs consent from 2 people. It's the same thing as you're really in love with a Shah Rukh Khan. And you can say, I really, Shah Rukh, I want you to please marry me, please marry me. Shah Rukh also has to say yes, no? But if he says, yeah, I don't think you're that bad, it could be possible, but you have to express your wish. If you have not expressed your wish, they will never know. But when it's a dynamic between 2 people have to say yes. मैं और थोड़ा इसको डिटेल में जानने के लिए और एक सवाल कर रही हूँ कि सपोजिंग यू नो आई वॉज वेरी मच इन लव विथ माई डॉग एंड जब वो गुज़र गया तब मैं उसके आत्मा की शांति के लिए मैं गया मैं जाके पिंडदान किया और उसका यू नो गंगा में बहाते टाइम मैंने बोला मेरे पास वापस आ जाओ. I want you back to me. Do you think that thing works? Yes, definitely. The animal realm, वो इतना खूबसूरत realm है, उनका एक ही purpose है. The animal realm is supposed to serve the human realm. Okay? When the animal realm serves the human realm, then they can come into the human realm. Then they can be born as human beings. Okay? तो वो बहुत खुशी खुशी they are there to energetically support you, to love you. And जिस तरीके का प्यार हमें एनिमल सिखाते हैं ह्यूमन बींग्स नहीं सिखा सकते. आप चाहे नुकसान करके आए हैं, आपके पेट को नहीं फ़र्क पड़ता. आप गंदा सा काम करके आए हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता. आप फेलियर हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता. दे विल स्टिल लव यू. अनकंडीशनल लव. So if you call them back, they'll happily come back. And you will know it. You will just know it that this is my pet that has come back to me. Oh, how beautiful. आई थिंक मैंने ये बात बहुत लाउडली बोला था किसी व्लॉग में या ऐसा कुछ यू नो कि मैं चाहती हूँ कि मेरा डेक्स्टर मेरे पास वापस आ जाए. एंड आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन आई मीन हु हैव लॉस्ट देयर पेट एंड ऑल दे आर कॉन्शियसली टेलिंग इट लाउड एंड क्लियर इनटू द यूनिवर्स कि तुम वापस आ जाओ मेरे पास. तो मैं ये जानना चाहती थी कि ये इज़ इट पॉसिबल टू ऑल्सो टेल अ पर्सन जो सफ़र कर रहे हैं मतलब लेकिन होता है ना कि जिंदा है एंड यू वांट कि बहुत सफ़र कर रहे हैं हाँ निकल जाए एंड यू कैन से एट दैट टाइम दैट यू नो लीव नाउ बट कम बैक टू अस लेटर. You can definitely tell them, leave. We will take care of this. You don't need to suffer. We are all going to be okay. We will take care of ourselves. Please go. You can express a wish that come back to us. But if they want to come back, they don't want to come back. Depends on what they decide when they go back into the soul world. It's up to them. We can't dictate that. And ये हमारे लिए एक लेसन है कि अगर कोई चला जाता है ना तो हमको उनसे डिटैच करना सीखना पड़ेगा. हमको अच्छा. Death is never painful for the people who have died. Death is painful for the people who have survived. उनको दुख होता है कि अरे यार ये चले गए.
They have gone back home. They are happy. They are comfortable. So is it not good to call that person ऐसा You can, कुछ again, कॉल बने, ऐसा नहीं कि मैं कुछ आपकी you have to say that do what is best for you. अगर आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में गया है आपको छोड़ के 4 साल के लिए, और अगर आप रोज़ फ़ोन करके बोलोगे यार मुझे बहुत याद आ रही है तेरी, तू बस घर आ जा वापस, तू घर आ जा वापस, बस तू वापस घर आ जा, वो लोग फोकस नहीं कर पाएंगे वहाँ पे जिस चीज़ के लिए गए हैं. और अगर वहाँ पे उनको किसी चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है तो गिल्टी फील करते रहेंगे कि मैं कैसे मज़ा कर रही हूँ, यहाँ पे मेरी मम्मी तो रोज़ रो रही है. तो व्हाट विल यू हैव टू डू? यू विल हैव टू कट दी अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर अ व्हाइल. अरे तुम मौज कर भाई, हम लोग ठीक हैं. That healthy level of detachment will allow your child to do justice over there in university also. आप रोज यहाँ पे रोएंगे, बोलेगा यार मैं तो पार्टी में जाने वाला था लेकिन मम्मी इतना रो रही है, छोड़ दे नहीं जाता. मतलब आपकी सैडनेस को कंपनी देने के लिए वो भी सैड हो जाएंगे. We have to learn detachment. My God, it's a very different way of looking at it today. मतलब नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम सोल को कंपनी दे रहे हैं ये बोल के कि जल्दी हमारे पास वापस आ जाओ, बट इट इज़ एक्चुअली अननेसेसरीली पीछे से बुलाने जैसी बात हो गई. सोल्स ईगो में नहीं बैठते हैं, ह्यूमन बींग्स ईगो में बैठते हैं. तो ह्यूमन बींग्स को लगा रहता है जब हम जिंदा है ना, हमको लगा रहता है यार मेरे को तो कोई याद ही नहीं कर रहा, तुमने तो फोन भी नहीं किया. तो ये जो पीपल प्लीजिंग की आदत है ये ह्यूमन रेल्म में ईगो के हिसाब से है. इन द सोल रेल्म यू जस्ट से डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. यू कम व्हेन यू थिंक द टाइम इज राइट. यू कम बैक इफ यू वांट टू कम बैक. You come back if you feel the need to come back. But I know that even if you don't come back, you're taking care of us. I let you be. Lovely way of looking at, like lovely way of introspection. और भी चीज़ें हैं like somebody is not getting married. वो चाह रहे हैं, मतलब वर्बली चाह रहे हैं, बट इट्स नॉट हैपनिंग. समबडी इज़ नॉट एबल टू लूज वेट. जो वर्बली वो चाह रहे हैं, अपेरेंटली देख के लग रहा है चाह रहे हैं. डू यू थिंक दीज थिंग्स हैज़ गॉट टू डू विथ एनीथिंग लाइक हीलिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा और समथिंग? अगर ये everything plays such a wonderful role. You know, I'm 44 years old. Okay, and for 43 years, I must have thought, why am I not losing weight? Why am I not losing weight? I understand कि मेरी मम्मी की भी ये कंप्लेन थी यार, I'm not losing weight, I'm not losing weight. Though she is very thin, but दिमागी कीड़ा मैंने भी उठा लिया, I'm not losing weight, I'm not losing weight. But today that I'm actually 12 kilos overweight, it just struck me last week, looking at myself in the mirror, that my weight is serving such a divine purpose. It's serving such a divine purpose right now that I just want to hug my body and say thank you for the weight. I noticed this, that if there is a very good looking woman who is speaking something important, people don't want to pay attention to what she's speaking. People just assume that, oh, she's successful because she's good looking. She's successful because she's thin. I am so grateful right now that because I am overweight, so many more women are being inspired by me because they feel like, अरे यार ये तो मोटी है, फिर भी देख अपना काम कर रही है, तो मैं भी मोटी हूँ, मैं भी अपना काम कर सकती हूँ. It's almost like my weight has liberated me and it's liberating so many other women. Nobody tomorrow can turn around and say, oh, she became successful because she's thin and sexy. No, I'm not. I'm 12 kilos overweight. But today I realize that the purpose of that weight was to be able to connect with everybody else who has low self-esteem because of their own weight. My body, my mind could say something else. My speech will say something else. My body is talking to the world saying, you are enough. It doesn't matter what size you are. You are enough. And I love that. So one last question. कुछ लोग होते हैं जो अपना
अपने आप को समझ लेते हैं दैट आई नीड टू गो टू अ थेरेपिस्ट और समथिंग. तो जेनजीज यूजुअली दे स्पीक अ लॉट कि मैं आज ये थेरेपिस्ट के पास गई, कल वो थेरेपिस्ट के पास गई. मिलेनियल्स एंड बूमर्स, दे आर लिटिल, आई फील कि थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा अपने आप में ही काम करते हैं. तो व्हाट डू यू वांट टू टेल देम कि उनको भी मतलब how do you approach self healing? Do you need to go to a therapist, or you can work on your healing well? Everybody can work on their healing on their own, लेकिन सबको एक मिरर चाहिए ना, टू लुक एट themselves and see that कैसी लग रही हूँ, ये ठीक लग रहा है, वो नहीं ठीक लग रहा है. Your therapist is your mirror. They will show you where you are. They will show you who you are. You like it? Great. You don't like it? Okay, maybe we can change this a little bit. Going to a therapist doesn't mean कि आप पागल हैं. Going to a therapist literally means that मैं एक ऐसा इंसान चुन रही हूँ जो मेरी लाइफ स्टोरी को सुनेगा, जो उसे एक्नॉलेज करेगा, जिससे मैं बिना डरे सब कुछ बता सकती हूँ. इवन माई डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स, मैं अपना मन हल्का कर सकती हूँ. एंड इन दैट प्रोसेस अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो पॉइंट आउट करेगी कि यार ये तो 4 बार हो गया तुम्हारी लाइफ में, अरे ये क्यों रिपीट हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, चलो आगे और थोड़ा इंस्पेक्शन करते हैं, सो बी इट. बट यूज़ योर थेरेपिस्ट एज अ मिरर टू एक्नॉलेज एंड ऑनर योर लाइफ. कोई तो चाहिए ना जो आपको बोलेगा कि यार बड़े दूर आ गए हो और बड़ी कठिन थी तुम्हारी जर्नी, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ यू. कोई तो चाहिए ना. सो ब्यूटिफुल. हम लोग डॉक्टर के पास जाने से नहीं घबराते हैं, थोड़ा एक ब्लड टेस्ट करके पता कर लेते हैं कि शरीर में कहाँ पे क्या खामियां हो रही है. बट इफ़ टुडे वी हैव लर्नड दैट हमारे शरीर को भी हर एक चीज़, हर एक ब्लड टेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है थ्रू हियर, तो हम उसके एक डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते ऐसे पूछने के लिए कि इसको ज़रा सा ठीक कर दो. बिकॉज द वर्ल्ड इज़ सो फुल ऑफ स्ट्रेस, सो फुल ऑफ एंग्जाइटी कि आजकल सारे ब्लड टेस्ट के साथ कोर्टिसोल का टेस्ट कराते हैं टू अंडरस्टैंड कि आपकी एंग्जाइटी लेवल कहाँ पे है. So that has got nothing to do with who you are, what you are doing, because I think it's very important to keep the sanity here, the calm here. And it was so calming to talk to you. I think मेरी ये therapy session हुई along with a lot of moms, क्योंकि मुझे और and I would say it's a divine meeting, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद सोच रही थी कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट व्हाट इफ़ एक किसी के साथ जाके मिलूँ, मैं बात करूँ, व्हाट इफ़. सो आई थिंक दिस वाज ऊपर वाला सेशन जहाँ पे मैंने एक जनरलाइज्ड सब कुछ चीज़ें पूछी, क्योंकि मुझे मेरे इर्द गिर्द आजू बाजू के जो सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका जवाब पहले लूँ. और उसके बाद वी विल हैव वन मोर सेशन वेयर वी विल टॉक इन डेप्थ अबाउट द टुडेज़ जनरेशन एंड द कमिंग जनरेशन, बिकॉज एज अ मॉम एंड एज टुडेज़ person who is willing to change, हमें वो जनरेशन को जानना बहुत ज़रूरी है to figure out where our children are growing up and going to be. Absolutely. तो आप प्रॉमिस कर रहे हैं आप मेरे साथ और एक सेशन करेंगे to address the Gen Z. मांगने से सब कुछ मिलता है. This is another life lesson. Why not? It will be my pleasure and privilege. If you want to do a session on Gen Z, so it shall be. So absolutely. So till the time, आप लोगों को अगर जो भी सवाल है यहाँ पे लिखिए, and I will see to it कि मैं वो सारे questions भी इनको पूछूँ, and we will have one more session. And till then, don't forget to like, share and subscribe to the Debina Banerjee Show, and you can listen to the whole podcast on Spotify and any other audio streaming platform. Thank you so much for coming here. Thank you for having me. I absolutely enjoyed myself.